Hi everyone, welcome to S4 Sharanya Science classes. Today we are doing the continuation of reproductive health chapter, and our main topics we are going to discuss here, that's actually medical termination of pregnancy and also STD, sexually transmitted diseases, their prevention and goes on. First we will go for that medical termination of pregnancy. What do you mean by medical termination of pregnancy? Actually, the medical termination of pregnancy is otherwise called the induced abortion, right? Whenever there will be intentional termination of pregnancy before the full term, that means 9 month की gestation period होती है, उसके पहले कोई सा भी रीजन की वजह से हमने intentionally वो pregnancy को abort किया है, then that is called medical termination of pregnancy. It can be otherwise known as the induced abortion. You can see that in a year, if you are checking that how much rate, right, or the worldwide कितना MTPs होती है, you can see that 45 to 50 millions MTPs are performed in a year. ये that MTP actually it is actually helping to decrease the population, right, population rate. It decrease करने के लिए MT की बहुत important role है, क्योंकि it is an induced abortion, obviously population rate will be decreased. But not in all cases this MTP can be performed. बहुत सारी कंट्रीज ने ये MTP को लीगलाइज नहीं किया है, क्योंकि उधर इट्स एक्चुअली इन्वॉल्व अ लॉट्स ऑफ सोशल इश्यूज, जैसे कि इमोशनल होगा, एथिकल, रिलीजियस एंड ऑल अदर इश्यूज की रिलेटेड है. इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज नहीं किया है. बट इन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया हैज एक्चुअली लीगलाइज्ड दिस MTP, medical termination of pregnancy, in the year 1971 with some special conditions, strict condition उन्होंने बता दिया था. उसके हिसाब से actually you can go for this medical termination of pregnancy. Actually ये strict condition इसलिए रखा है because there were so many cases which actually misusing this medical termination of pregnancy or the induced abortion to kill the female child, to kill the female fetus, right? So female feticides की rate ज़्यादा होने लग गई. So that's why there was some strict condition, right? Under some legal conditions are there, then only they can perform the medical termination of pregnancy. जैसे कि you can see that ये medical termination of pregnancy, it's actually helpful to avoid the pregnancy due to casual intercourse or failure of the contraceptive use during the coitus or in the case of rape. कभी-कभी कुछ कैशुअल इंटरकोर्स की बाद भी जिसी ने भी व्हाट विल से दैट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लेना भूल गई और उसकी वजह से दे बिकम प्रेग्नेंट एंड देयर कंडीशन इज लाइक दैट मीन्स इफ द फीमेल मदर की और दैट फीमेल की कंडीशन ऐसे शी कांट कैरी द बेबी विथ सम रीजन, मे बी हेल्थ इश्यूज और एनी अदर रीजन, और कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटी वो बच्चों को दैट फीटस को हो गया, तो दे कैन नॉट कंटिन्यू दैट प्रेगनेंसी. उसी केस में इट विल बी रिस्की. एक्चुअली वो जेनेटिकल एबनॉर्मल माल फॉर्मेशन हो सकती है बच्ची में, और मदर्स की लाइफ में कोई रिस्क फैक्टर है. दैट मीन्स इफ द प्रेगनेंसी इफ इट इज कंटिन्यूइंग देन दैट विल बी रिस्क फॉर बोथ द मदर एंड फीटस. ऐसे वाली कंडीशन में और भी है कभी कभी दैट देयर आर सो मेनी सोशल इविल्स आर देयर, राइट? तो ऐसे एक दैट रेप्स के केस में, राइट, सो ऑब्वियसली देयर विल बी नो कॉन्ट्रासेप्टिव. तो to that if that girl is not that adult, that means mature, that maturity attain नहीं हुआ है, that means she is not an adult, right? So ऐसे केस में it will lead to problem later. और multiple partners rapes में हुआ था, like that is any case of rapes and all. So that if that sexual intercourse if it is leading to pregnancy, then that will be a problem. तो इसको सभी को avoid करने के लिए they can go for this medical termination of pregnancy. It is legalized. But बाकी केस में if it is a girl child or anything, then if it is induced abortion करना, वो actually एक criminal offense है. मोस्टली आप लोग ने देखा होगा इफ यू आर गोइंग फॉर इन एनी हॉस्पिटल और एनी व्हाट विल से अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग लैब वगैरह में जाती है, तो यू कैन सी दैट देयर विल बी सम स्पेशल नोटिस, राइट? सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट सेक्स, राइट, एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ये क्रिमिनल ऑफेंस है. इट इज नॉट एक्चुअली लीगलाइज्ड, राइट? सो ये बच्चों का दैट व्हाट इज दैट सेक्सुअलिटी अंडरस्टैंड करना
राइट, और उसको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना दोनों क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट. सो एक्चुअली इन दिस केस यू कैन सी दैट ये कंटिन्यूशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं मदर को और फीटस को और कभी कभी बोथ को. सो दैट टाइम इट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, राइट. सो यू कैन सी हियर एक्चुअली दिस MTP इज एक्चुअली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. दैट मीन्स 3 महीने की टाइम में ये प्रेगनेंसी अबॉर्शन कर रही है तो इट विल बी वेरी सेफ. बट इसके बाद अबॉर्शन वेरी रिस्की है. इट कैन लीड टू दैट द डेथ ऑफ द मदर also. So that will be really risky after 3 months if it is going for any abortion. And there are so many problems also related to this. We have to say that जो प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. हमने बोल दिया था बहुत सारे एडवांटेजेस है, राइट. सो यू कैन सी दैट इमरजेंसी सिचुएशन में, राइट, तो कभी कभी वो फीटस और मदर्स फेटल होती है. उसी कंडीशन में दैट ना वो मदर को सेव करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत हेल्पफुल है. और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए, दैट मीन्स इफ यू वांट टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी आफ्टर ड्यू टू रेप्स और एनीथिंग, उसको अवॉइड करने के लिए भी MTP बहुत यूजफुल है. और MTP किया है, देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स आल्सो. व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स, राइट. तो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द MTP परफॉर्म्ड इलीगली होती है, राइट. तो मोस्टली यू कैन सी दैट इन इंडिया जैसा बहुत सारी कंट्रीज में जब वो दैट ना सेक्सुअल पहले ऐसे था, वी कैन आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द fetus. उसके बाद if it is a girl child, most of them are performing that induced abortion, right. तो ये एक प्रॉब्लम था पहले. इसके बाद एक्चुअली इंडिया गवर्नमेंट ने 1971 में बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन के हिसाब से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ किया है, राइट. सो एक्चुअली यू कैन सी दैट देयर विल बी मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट. व्हाट इज दैट एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस टेस्ट? इसी में एमनियोटिक फ्लूइड, जो आपको पता है देयर विल बी फ्लूइड इन विच दैट बेबी इज द fetus is actually laying, right. So ये fetus को actually if you are taking out in that now you can take it out through some injective methods. Ultrasound transducers होती है, उसमें से you can take it out. For that actually it is actually helping कोई भी genetic abnormalities है, genetic disorder है, और वो बेबी की कुछ केस में सर्वाइवलिटी की चांसेस कितना है, they can survive throughout that 9 months, they can continue that, और वो हेल्थी बेबी, ये सब कुछ समझने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट परफॉर्म करती है, राइट. यू कैन सी हियर एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड एक्चुअली फीटस के अंदर से वो दैट मदर्स की वॉर्म से वो टेक आउट करती है, और वो उसमें से यू कैन सी दैट फीटल सेल्स विल बी देयर एंड सम डिसॉल्व्ड सब्सटेंस विल आल्सो बी देयर. ये सब्सटेंस को आप टेस्ट करो तो यू कैन सी दैट प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है और फीटस की सर्वाइवलिटी चांसेस कितना है, ये समझ सकती है. Or through this test we can even identify the sex of that fetus also. अभी ये फीमेल चाइल्ड है पता चल गई, then ये amniocentesis test mostly उसको it will be followed by MTP, right. तो ये MTP practice, that means it is actually dangerous for the young mother and fetus. Most of the case में villages में you can see that वो abortion, if it is a girl child, mostly it will lead to an abortion. That's actually in that young age में वो mother को और fetus को दोनों को it will be a dangerous situation, right. तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए यू कैन सी दैट हमने बोल दिया था बहुत सारे डिसएडवांटेज इसका मेनली बता रहे थे. फीमेल फीटिसाइड्स इंक्रीज हो जाती है MTP की वजह से, और इलीगल अबॉर्शन इंक्रीज हो जाती है, राइट. सो यू कैन सी दैट इट हैज टू बी प्रिवेंटेड, राइट. इसलिए यू कैन सी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्ट, राइट. सो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट इन 2017, उन्होंने क्या किया था, ये एक्ट के हिसाब से एक्चुअली इलीगल अबॉर्शन एंड मैटरनिटी मोर्टालिटी एंड दैट नाउ मदर्स की डेथ वगैरह कम करने के लिए उन्होंने स्पेशल एक्ट पास किया है. एंड इसके एक्ट के हिसाब से प्रेगनेंसी एक्चुअली टर्मिनेट, राइट, विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑन द ओपिनियन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कुछ भी वजह से, तो इट कैन बी. ऐसे नहीं है कि किधर भी जाओ आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर लो, बट कोई भी रिस्की कंडीशन में, दैट मींस इफ मदर्स के लिए प्रॉब्लम है और अननोइंगली प्रेग्नेंट हो गया, ऐसे कोई भी रीजन की वजह से, इफ यू वांट टू अबॉर्ट दैट चाइल्ड विद इन दैट फर्स्ट 12 वीक्स, then which is actually the opinion by a registered medical practitioner, that means a doctor, then it will be
possible, otherwise it will not possible. If pregnancy actually 12-24 weeks हो गया तो 2 registered medical practitioner की देखना opinion चाहिए और their actually what we say consent चाहिए, then only they can be go for this medical termination of pregnancy. That means आप कितने भी रिस्क बता रही है मदर्स की, फीटस की और उनका हेल्थ की कोई भी रिस्क है, 12 to 24 देखना वीक्स हो गया है, then there must be 2 doctors must be given the consent, then only they can go for the medical termination of pregnancy. राइट ये एक्ट 2017 में पास हुआ है. इसके बाद बहुत सारी इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन कम हो गया है इंडिया में. राइट, I hope you have a clear idea about MTP. Now we are moving to the next session of this chapter. That's actually sexually transmitted diseases or STD. Right? STD actually you can see that it is a disease actually transmitted through sexual intercourse. Right? इसलिए तो उसका नाम रखा है STD. Right? STDs actually you can see that बहुत सारी टाइप ऑफ STDs होती है, जैसे कि गोनेरिया, सिफिलिस, राइट, जेनेशियल herpes, क्लैमिडियासिस, जेनेशियल वॉर्ट्स, राइट, तो हेपेटाइटिस बी, HIV और that which is leading to AIDS, right? So these are so many STDs are there. Actually these diseases are by unsafe sex की वजह से, right? So we can say that ये डिसीज एक जने से दूसरी जगह में ट्रांसमिट हुआ है थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट्स एक्चुअली थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइम. राइट, इसलिए इसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. राइट, तो इसलिए इसको बोलती है STDs और STIs. राइट, और इसको और भी नाम देती है वेनिरल डिसीजेस और VD, और इवन कभी कभी RTIE भी बोलती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल देती है. राइट, so actually reproductive tract infection थोड़ा सा mild है, there are some other minor reproductive tract infections, but STDs and venereal diseases are it's very severe in case. Right, how these actually sexually transmitted getting, how they are spreading, right? So you can see that this is actually transmitted through sexual intercourse. Right, हमने अलग अलग एग्जाम्पल बता दिए था. मेन डिसीजेस है, वन इज गोनेरिया, अनदर वन द सिफिलिस, HIV AIDS है, जेनिशियल दैट herpes और जेनिशियल वॉर्ट्स वो भी इंक्लूड करती है. इसका सभी की रीजन ऐसे ही है, मोस्टली दैट ना व्हाट विल से दैट बाय शेयरिंग इन्फेक्शन दैट ना इंजेक्शंस और नीडल्स ऐसे भी हो सकती है. राइट, नॉट सिंपली थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, कभी कभी और भी पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि एड्स के केस में वी कैन सी दैट इफ एड्स पेशेंट्स हैं उनसे एक्चुअली व्हाट विल से दैट अनस्टरलाइज्ड इंजेक्शंस यूज किया है, तो वो किसी और दैट नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को हमने यूज किया है, देन देयर विल बी 100% चांसेस दैट ब्लड ट्रांसमिशन हो गया है. इफ एड्स पेशेंट्स की ब्लड किसी और को राइट दे दिया है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चांसेस इज देयर. राइट, सो दैट्स आल्सो पॉसिबल इन द केस ऑफ एड्स एंड ऑल. राइट, अभी हेपेटाइटिस बी और HIV उसको हम बता रही है बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह. इसलिए तो बता रहे हैं मोस्टली हॉस्पिटल्स वगैरह में स्टरलाइजेशन इज मस्ट. राइट, और आजकल पहले तो स्टरलाइजेशन वाज देयर बिकॉज वे वर यूजिंग ग्लास टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल. नाउ देयर आर डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड ऑल. राइट, और भी चांसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वो है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. राइट, डायरेक्ट ऑब्वियसली एड्स पेशेंट से किसी और को दैट ना नॉर्मल पेशेंट्स को दैट नॉर्मल लोग को कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, then obviously there is 100% chance of getting AIDS. Right, फिर another chances है infected mothers to fetus. That means if the mother is pregnant and she is having AIDS, then there is a chance of getting to that fetus. So one is that unsafe sex, that's actually through the sexual intercourse itself. Then sharing of needles, right, with the infected persons. इसकी और भी है, हमने बोल दिया था नॉट ओनली फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड ऑल, कभी कभी मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे डिसीज में ये ड्रग एडिक्ट लोग, राइट, उन लोग एक्चुअली उनका ब्लड के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए नीडल्स यूज करती है. इफ दे आर एक्चुअली हैविंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ऑब्वियसली जिसको नहीं है उनको भी वो ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा है. राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द केस ऑफ एक्चुअली यंगस्टर्स नाउअडेज. राइट, फिर है मदर्स टू फीटस, हमने बता दिया था जब भी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है, दैट टाइम आल्सो देयर इज अ 100% चांस. राइट, और इसकी एक्चुअली वी आर टेलिंग हेपेटाइटिस बी और जेनिशियल herpes और HIV and other diseases are completely curable
इफ उसको पहले से आपको पता चल रही है, उसका डायग्नोसिस पहले से हो रही है और उसको अच्छे से ट्रीट कर रही है, तो हेपेटाइटिस बी, जेनेशियल herpes एंड HIV और कुछ अदर डिसीजेस वो कम्प्लीटली क्योरेबल है. बट दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग उसको पहले से ध्यान देना है. इस तरह एनीथिंग हैपेंड, राइट, उसका डायग्नोसिस जरूरी है और उसको करेक्ट टाइम में उसको ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है. Right. So here you can see what are the symptoms. How can you understand ऐसे that ना sexually transmitted disease हुआ है आपको, तो there will be some early symptoms will be there. कभी-कभी आपका private part में there will be itching will be there, some fluid discharge will be there. कभी-कभी थोड़ा सा slight pains you can see that, कभी and swelling of that genital parts will be there, right? ये genital parts में mostly the private part whether male or female की प्राइवेट पार्ट्स में there will be itching, fluid that ना हल्का सा येलोइश कलर और वाइट कलर की फ्लूइड डिस्चार्ज होती है और स्लाइट पेन होना शुरू होती है, इवन स्वेलिंग्स आना शुरू हो गया. ये सब कुछ एक्चुअली दीज आर द अर्ली सिम्टम्स. इफ यू आर अवॉइडिंग ऑल दीज सिम्टम्स, करेक्टली उसको डायग्नोस नहीं कर रही है, उसको ट्रीट नहीं कर रही है, दीज एक्चुअली lead to severe problems, right? So you can see here absence or less significant early symptoms and the social stigma deter the infected person to consult a doctor. तो आपने अवॉइड कर रहे हैं. मोस्टली लोगों के क्या है, अरे ये तो किसी से बात नहीं कर सकते हम, राइट? दिस आर एक्चुअली, अरे इसके बारे में किससे बात करूँ, दिस इज नॉट गुड, राइट? सभी सोचती है ये कोई देखना हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, इवन फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से और अपने पार्टनर से भी बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर सकते, राइट? सो एक्चुअली देयर इज नथिंग टू रॉन्ग इन दैट. उसके लिए शर्माने की कोई बात नहीं. इट्स एक्चुअली कॉमन थिंग. यू कैन डिस्कस विद अ डॉक्टर, काउंसलर और एनीवेयर. आपने पहले से उसको ध्यान दिया है और अर्ली सिम्टम को नोट किया है और उसका ट्रीटमेंट पहले से दिया है एंड दीज डिसीजेस आर कम्प्लीटली क्योरेबल. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो जल्दी डॉक्टर्स को कंसल्ट करना और उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, राइट? इफ they are not doing like that, it can even lead to other complications जैसे कि pelvic inflammatory disease PID, right? और if it is a pregnant lady है, उनके भी chance that infections, even urinary tract infections वगैरह common है, वो it can even lead to abortions also, right? उसको infection अंदर तक आकर it can lead to abortions, right? Stillbirth, that means जो बच्चे पैदा हुआ उसी वक्त में मर जाती है, राइट? एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती है कभी कभी, राइट? और इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर भी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कैंसर भी हो जाती है और डिफरेंट मालफॉर्मेशंस होती है. एंड देयर आर सो मेनी रिस्की थिंग्स इन दिस इफ we are avoiding all these early symptoms, right? So that means the early symptom has to be considered properly and to take enough treatment properly. कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमको एक्चुअली क्लीनिंग, राइट? सो क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो एसटीडीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिफरेंट मेथड्स. अभी अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर से और अननोन पार्टनर से कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करना, राइट? एंड इफ एनी अदर दैट ना कोशिश की टाइम use of condoms, right? If anything happen, so use of condoms, you can condoms use करने की वजह से we can avoid so many type of STDs very easily, right? एंड कभी-कभी डाउट हो रही है तो जल्दी की जल्दी एक क्वालिफाइड डॉक्टर की देखना कंसल्टेशन लेना और उसको अर्ली डिटेक्ट करो एंड आफ्टर दैट कंप्लीट ट्रीटमेंट दे कैन गो फॉर दैट, राइट? सो ऑब्वियसली हमने बता दिया था प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज में आते हैं दैट अवॉइड अनसेफ सेक्स, राइट? दैट मीन्स मल्टीपल पार्टनर से और अननोन पर्सन से देखना सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है. और यू कैन से दैट वॉश बिफोर और आफ्टर द इंटरकोर्स अच्छे से क्लेनलेस, राइट? सो इंटरकोर्स के बाद भी और पहले भी देखना जेनिटल पार्ट्स अच्छे से वॉश करना है, दैट मीन्स क्लीन करना है. And confirm that the partner is HIV tested and before the intercourse. That means there is no signal of symptoms of HIV. वो भी make sure करना है, right? हमने already बता दिया था multiple partner से sex avoid करना है, right? और ऐसे आपने डिटेक्ट किया है तो उसको अच्छे से अच्छे जल्दी उसको क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर उसको क्योर करना है, right? So complete treatment post diagnosis of STD. These all are the prevention methods of STD, right? All persons are vulnerable to STDs, वो भी हमको समझना है.
कोई सा भी STD, दैट मीन्स इफ यू आर इन द ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स, उसका चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे थिंग्स वी हैव टू अवेयर। मैंने पहले से आपको बता दिया था, हम ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह ऐसे सिलेबस के पार्ट में लर्न किया है। इसके अलावा भी एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स सो दैट इट विल हेल्प फॉर अ बेटर लाइफ। Now we are going to the another topic of this chapter, that's actually infertility, right? हमने human reproduction chapter में learn किया है बहुत सारी type of that now what is a gamete fusion क्या है, कैसे gametes formation होती है, how the implantation, everything we learned. There are so many couples in this world who doesn't have a baby, right? So कभी कभी infertility हो जाती है, क्यों? Is there any other solution, right? So we can say that infertility की मतलब है, the definition of we can say that the inability of a couple to reproduce naturally to give birth to a young one. Naturally उसको reproduce नहीं कर पाना, right? So that means कोई that now what to say offsprings को naturally reproduce नहीं कर पाना, so that's actually called that infertility, right? It's actually, we can already told you, it's actually the inability to conceive, right, or produce the children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation. That means it must be that means marriage के बाद और वगैरह 2 years के बाद भी बच्चे, that means if the lady is not able to conceive with different reason, right, उसको हम infertility बोलते हैं। that means marriage के बाद 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद that they are not able to conceive, it is not considered as infertility. There will be different reasons, right? So इसलिए बोल रही है आफ्टर 2 years भी आपको सेक्सुअल कोहैबिलिटेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रही है विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, देन ऑब्वियसली दैट कंसिडर्ड एज ए इनफर्टिलिटी, राइट? इसके रीजन अलग अलग होती है। मोस्टली इट कैन बी फिजिकल, कोई भी फिजिकल इश्यूज होती है, कभी कभी जेनेटिकली होती है, राइट? और कोई डिसीज की वजह से भी हो सकती है, और इफ यू आर टेकिंग ड्रग्स और एनीथिंग देन दैट आल्सो कैन बी लीड टू इनफर्टिलिटी। कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल भी होती है, इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर और एनीथिंग उसकी वजह से भी होती है, राइट? और ये इनफर्टिलिटी, these disorder can be treated in that infertility clinic, especially clinics are there actually they are using a special what we say technology, उसका नाम है assisted reproductive technology, ART, right? So there are some special infertility clinic which is actually using this technique which is called assisted reproductive technology, ART, which is actually helping that infertile couple to that give birth young ones. उनके अलग अलग ट्रीटमेंट वगैरह होती हैं. You can see that the technology used to correct the infertility problem, there are different technologies are there. Some of them we are discussing here. You can see that ART, that is assisted reproductive technology. There are actually GIFT is there, that is gamete intrafallopian transfer, or ICSI is there, right? That's actually intracytoplasmic sperm injection, and you can see that artificial insemination, right? Very common one. Then surrogacy, and the other one IVF. This is the most common type of infertility treatment. You can see that in vitro fertilization, IVF, right? So that's a test tube baby program, right? These are the different programs. One by one we will discuss. First one we are discussing here, it is actually, you can see that in vitro fertilization or IVF, or we can say that test tube baby program. This is the most common ART, right? So in this method actually what they are doing, right? So here you can see that the ova is actually collected from the wife or any donor, और sperm को भी अलग से husband से और donor से collect कर and they are actually induced to form a zygote, right? तो ये अंदर that now actually in vitro, this is actually happening inside a laboratory, that's why we are telling in vitro, right? So एक special condition provide कर उसको artificially बाहर फ्यूज कर सकती है, उसके बाद it's actually injected into the mother's womb, right? So this is actually transfer that now followed by embryo transfer. That's actually the method, right? So here you can see that first they will collect the egg from the female donor or the mother, or even that now sperms also collected by the male donor or the husband. उसको in vitro, that means inside the lab, इसको हार्मोनल थेरेपी से उसको स्टिमुलेट करती है द एग को अलग अलग स्टेजेस में, दैट ना इट मस्ट बी रीच इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज, देन ओनली दैट ना फ्यूजन विल बी देयर. तो उसको अलग हार्मोनल थेरेपी से ट्रीट कर द एग विल बी दैट ना रेडी फॉर दैट
फ्यूजन ऑफ द स्पर्म, राइट. उसके बाद अलग से लेबोरेटरी में उसका फर्टिलाइजेशन कर देती है. देन द एम्ब्रियो zygote formation. आफ्टर दैट द एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल बी द करेक्ट एम्ब्रियो की स्टेजेस हो गया. देन दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द same mother's body into the uterus, and that can be developed into the fetus, right. So here you can see that the embryo transfer also, it can be done in two different methods. That's actually zygote intrafallopian transfer, ZIFT, and intrauterine transfer, that is IUT. What is actually, you can see that embryo transfer क्या होती है, उसका types क्या है, that we are going to discuss now. You can see here transfer of zygote or early embryos, right. So that means 8 blastomeres की stage में fallopian tubule में उसको transfer करना, that's actually called zygote intrafallopian transfer, right. So that means blastomeres की stage में ही उसको transfer करती है. अभी next type of embryo transfer होती है वो है intrauterine transfer, that is IUT, right. इसमें क्या है, वो एम्ब्रियोस थोड़ा सा और, दैट मींस मोर देन 8 ब्लास्टोमेस की स्टेज में यूट्रस में ट्रांसफर करती है. वी ऑलरेडी नो दैट 8 to 16 स्टेज में द एम्ब्रियो विल बी दैट क्लीवेज will be going on and it will be descending to the uterus for implantation, right. तो इसी स्टेज में fallopian tubule में इसको ट्रांसफर कर रही है, then that is called zygote intrafallopian transfer. अभी थोड़ी और बढ़ने की, दैट मींस 8 मोर देन 8 ब्लास्टोमेस की स्टेज में, उसके ज्यादा स्टेज में उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर रही है, देन दैट इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, राइट. अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये एम्ब्रियो सारी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन से भी यू कैन दैट, राइट. सो एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, right. So that's actually fertilization within the female is also used for such transfer to assist those female who cannot conceive. तो that means कभी कभी केस में ऐसे भी करती है जो फीमेल को उनका व्हाट से फीमेल को कंसीव नहीं कर पा रही, तो कोई से भी और फीमेल के अंदर इसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद उधर से वो निकाल देगी. देयर आर सम टेक्नोलॉजी, देन जिसको वो फीमेल, जिस फीमेल को कंसीव नहीं कर पाती है उनकी एम्ब्रियो की दैट यूट्रस के अंदर वो डाल देती है. सो इन वाइवो दैट मींस इनसाइड ए यूट्रस इटसेल्फ द फ्यूजन हैपेंड, राइट. फिर उसको निकाल दी. ऐसे भी टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल. दैट मींस this actually the fusion can be done in vitro in the laboratory and in vivo inside the uterus itself. ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. अभी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में GIFT में क्या होती है, that also we have to understand. Here actually हम actually the ovum, right, from the donor it is actually transferring of the ovum. एक donor से that ovum will be transferred into the fallopian tubule of another female, right. तो कभी कभी कुछ कंडीशन में वो फीमेल ovum प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो किसी और से वो ओवम ले लेगा और स्पेशल कैथीटर की सहायता से it will be transferred into the fallopian tubule. Now the sperm can actually, sexual intercourse can be performed and sperm can come here and fuse and the other procedures will be followed. तो इसी केस में क्या है, वो फीमेल को ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसको it will be very helpful, right. So बाकी सारे प्रोसीजर, फर्टिलाइजेशन, every embryo development, everything will happen. But this is actually specially meant for the female who cannot produce that ovum, right. हमने बोल दिया था आर्टिफिशियल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अदर, उसके फायदा तो है, राइट. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हमने IVF की ऑलरेडी हमने बता दिया था. ये इसमें फर्टिलाइजेशन बाहर की आउटसाइड द बॉडी होती है एंड ओवम फीमेल से कलेक्ट करती है एंड स्पर्म्स आल्सो फ्रॉम द मेल से कलेक्ट करती है, वेदर इट इज हस्बैंड और वाइफ, राइट. उसके बाद कुछ हार्मोन थेरेपी से लेबोरेटरी में वो ओवम को इंड्यूस कर देन गैमेट की फ्यूजन कर फर्टिलाइजेशन कर ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है. देन दैट एम्ब्रियो इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल की बॉडी, राइट. तो वो हमने बता दिया था. इट कैन बी एक्चुअली व्हाट विल से ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब्यूल में 8 ब्लास्टोमेस की स्टेज की पहले करती है और डायरेक्टली यूट्रस में उसके बाद 8 ब्लास्टोमेस स्टेज की बाद भी कर सकती है, राइट. तो हमने बोल दिया था ये ट्रांसफर करने के लिए भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर देयर, राइट. सो वो भी हमने इधर डिस्कस किया था कैसे वो सब कुछ करती है. इवन इन वाइवो ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है. GIFT में हमने बोल दिया था उधर ओवम को जिसको ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते उनके लिए एक्चुअली इट इज वेरी हेल्पफुल, राइट. सो इट्स एक्चुअली हेल्पिंग फॉर द वुमन अनएबल टू प्रोड्यूस एन ओवम but can provide suitable environment for the fertilization and embryo development. That also we have to remember. All right. The other type of actually that RT then ART is that's assisted reproductive technology में next आती है वो है
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट, ICSI बोलते हैं उसको. इट्स एक्चुअली ये भी एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है. दैट मीन्स इट इज आल्सो एक्चुअली परफॉर्म्ड इनसाइड द लेबोरेटरी इटसेल्फ. इधर क्या होती है, सिंगल स्पर्म उसको डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट करती है, राइट. सो यू कैन सी दैट अ लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच ए सिंगल स्पर्म, राइट, फ्रॉम द मेल पार्टनर वो लेती है और उसको एग के अंदर डायरेक्टली फीमेल पार्टनर के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करती है, राइट. एंड वंस द फ्यूजन ऑकर, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एम्ब्रियो zygote डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है. यू कैन सी हियर इट्स एक्चुअली परफॉर्मिंग इन द पिक्चर, राइट. लेबोरेटरी में उसको इंजेक्शन की वजह से एग में स्पर्म फ्यूज करती है. यू कैन सी हियर आफ्टर द फ्यूजन द zygote फॉर्मेशन, देन द एम्ब्रियो स्टेज में, इसी स्टेज में वो वुमन की यूट्रस में इम्प्लांट करती है. Next very commonly used ART is that artificial insemination, right. इसमें क्या होती है, you can see here artificial insemination में बहुत सारी ना मैन को, राइट, विच इज हैविंग लो स्पर्म काउंट, राइट, उसको बहुत सारे हेल्प मिल जाती है इसकी वजह से. कभी कभी बहुत डिफरेंट रीजन की वजह से स्पर्म काउंट में बहुत कम हो जाती है और मे बी हेल्थी स्पर्म्स विल नॉट बी देयर. तो इसी केस में दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज वेरी हेल्पफुल. उसको देखना मैंने पहले बोल दिया था, लो स्पर्म काउंट है और उसको लो मोटेल स्पर्म्स है उनको भी, और इवन फीमेल को अनरिसेप्टिव सर्विकल म्यूकस होती है. दैट मीन्स कभी कभी वजह से प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं होती है, राइट. इसी सारे केस में देखना यू कैन सी दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और AI वेरी हेल्पफुल है. वो कैसे हेल्प करती है, स्पर्म को डायरेक्टली एक्चुअली फीमेल की सर्विक्स में और यूट्रस में और इवन फेलोपियन ट्यूब्यूल में इंजेक्ट कर देती है, राइट. सो इसलिए ये बहुत कॉमन है. दैट्स एक्चुअली इसमें से मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज एक्चुअली इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होती है, राइट, जिसमें यूट्रस में वो इंजेक्ट कर देती है. तो हियर यू कैन सी दैट द स्पर्म इज एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर और उसको आर्टिफिशियली फीमेल की वेजेना, यूट्रस और इवन फेलोपियन ट्यूब्यूल में इंसर्ट कर देती है. इसमें मोस्ट कॉमन है जो यूट्रस में इंसर्ट करना, दैट्स एक्चुअली इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, राइट. हमने ऑलरेडी बता दिया था ये बहुत यूजफुल है जो मेल पार्टनर्स एक्चुअली इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट इन द फीमेल और लॉ स्पर्म काउंट है और उनका मोटिलिटी, दैट मीन्स व्हाट वी से स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम है, उनकी केस में इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. And another type of that ART, it's not that much common, but फिर भी आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत ज्यादा देखा होगा सरोगेसी, राइट. तो हियर मोस्टली कॉमन पीपल के अंदर ये इतना कॉमन नहीं है. बाकी सारे टेक्निक और IVF और दैट ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट्स द मोस्ट, दीज आर द टू मोस्ट कॉमन ART, यू कैन सी दैट. उसके अलावा भी other techniques also doing, but here surrogacy it's not that much common in common people, but फिर भी बॉलीवुड हॉलीवुड में ये टेक्निक यू कैन सी वेरी कॉमनली, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई. यू कैन सी दैट देयर आर सो मेनी किड्स, राइट. इवन रिसेंटली शिल्पा शेट्टी है और आमिर खान है, शाहरुख खान है, सारे ये सरोगेसी, यू कैन सी दैट. उसमें क्या होती है, द वुमन सरोगेट मदर होती है. एक्चुअली वी कैन से दैट ए रेंटेड होम जैसा ही है, राइट. So bears a child for a couple of for a couple, that means who is actually unable to produce their children. नॉर्मल केस में ऐसे होती है जिसको बच्चे कैरी नहीं कर पाते, जिसका यूट्रस इट्स नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, उनको बच्चे चाहिए, तो एक्चुअली दे आर एक्चुअली रेंट में, इट्स नॉट रेंट, कभी कभी कुछ वजह से दे विल टेक दैट सरोगेट मदर, वो हेल्प करती है. दैट मीन्स उनका खुद का ही स्पर्म, खुद का ओवम, बट दैट एक्चुअली द रूम एक्चुअली दैट जिधर वो फीटस ग्रो होती है, दैट्स एक्चुअली सरोगेट मदर, राइट. सो वाइफ इनफर्टाइल होती है और अनएबल टू कैरी करती है, तो देयर विल बी हेल्प ऑफ अ सरोगेट मदर. दे विल what is it, the baby will grow, the fetus will grow. Here you can see that the surrogate is actually impregnated through that artificial insemination or implantation of the embryo produced by IVF. इसमें क्या क्या होती है, either ovum is not taking from the what is it, the female partner, तो ovum ये खुद की सरोगेट की मदर की हो सकती है. उधर सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से the sperm इंजेक्ट करो, then that will be lead to the embryo development and all. और कभी कभी इनका ही what is it, the male से sperm ले लिया और फीमेल से ovum लेकर हमने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर दिया, and that embryo will be inserted into that mother, that means into the uterus, then that also case be possible है, right.
नाउ ART की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, हमने बहुत सारे एडवांटेजेस डिस्कस किया है. एक्चुअली देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से बहुत सारे हेल्प हो जाती है. दैट मीन्स एक मदर होना और एक बच्चे को पैदा करना, दैट्स एक्चुअली दैट ना व्हाट से गॉडली, और ऐसे ऐसे एक फीलिंग होती है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग, राइट? So it is actually helpful for so many different infertile couple. So it's actually helpful, but इसी same time में there are some problems also. What is that actually? So here you can see that ART high amount of actually precision चाहिए इसमें वो cases को handle करने में, right? And this must be handled by specialized professionals, right? और डॉक्टर्स उतना प्रोफेशनल डॉक्टर्स चाहिए. एंड एक्चुअली कभी कभी these are actually very costly also, and expensive instrumentation also required. इसका देखना स्पर्म को स्टोर करना, ओवम को स्टोर करना, एम्ब्रियो को स्टोर करना, उसको फ्यूज करना, ये सभी के लिए जो देखना व्हाट से इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत कॉस्टली होती है, राइट? तो इसलिए इसको देखना व्हाट से दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स में अवेलेबल है. और नॉर्मल पीपल को इसको देखना अटेंड करना इट्स एक्चुअली समवॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली ऑल्सो, राइट? कभी कभी हम बोलती है इमोशनली और रिलीजियसली सोशल वेज में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो जाती है. फिर भी इट्स एक्चुअली हेल्पफुल फॉर सो मेनी पीपल, राइट? तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था एक्चुअली रेंट, राइट? आपने मैंने बोला था ना अभी हॉलीवुड और ना बॉलीवुड में वगैरह दिस इज वेरी कॉमन ट्रेंड, यू कैन सी दैट. उसके केस में मे बी व्हाट आर द रीजन वी डोंट नो, मे बी रीजंस होती है. बट इफ दे कैन नॉट, दैट मीन्स सेकेंड टाइम दे डोंट वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, और आपको देखना उनको फिल्म करियर चालू करना है बट उनको बेबी भी चाहिए, so they are going for surrogacy and all. There is different reasons will be there, we don't know about that, but this is the case. एंड कभी कभी इसके अलावा भी मेथड्स होती है, दैट इज एक्चुअली द अडॉप्शन, राइट? सो लीगल अडॉप्शन इज ऑल्सो बेस्ट मेथड है जो देखना कपल्स एक्चुअली पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहती है उनके लिए. दैट मीन्स इसके लिए वगैरह पैसा नहीं, दैट मीन्स AR देखना असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए ART के लिए पैसा नहीं है, और दे वांट टू देखना बिकम ए पेरेंट और पेरेंटहुड एंजॉय करना है. देयर आर सो मेनी ऑर्फनेजेस आर देयर जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वो एक पेरेंट की देखना व्हाट से लव एंड केयर को हेल्प देखना एक्सपेक्ट करती है. So they can go for the legal adoption method also. I hope you understand this reproductive health chapter in detail and properly, and I hope it will be helpful for you. Thank you for watching.